نبوت قسمت کا احترام کر رہی ہے، بیٹی کا احترام نہیں کری، یہاں پہ منصب کا احترام کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، جب بھی فاطمہ آتی تھی بارہا دیکھا گیا نبی کی بزم میں، نبی اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے تھے، خالی بلند نہیں ہوتے تھے، مسلمانوں نے لکھا کہ 3 قدم آگے بڑھتے تھے، آگے بڑھنے کے بعد زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، پھر اس جگہ پر بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھتے تھے، اسی جگہ پر لا کر بٹھاتے تھے جہاں پر خود بیٹھتے تھے، مجلس مکمل ہو گئی جی، اس جگہ پر لا کر بٹھاتے تھے جہاں پر خود بیٹھتے تھے، جی بیٹھ گئے، نبی بھی بیٹھ گئے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ بھی بیٹھ گئی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اب کائنات میں کوئی ایسی شخصیت ہے کہ اب وہ آ جائے تو یہ اٹھ جائے؟ آپ کے سامنے کیا ہے کوئی پوری کائنات میں ایسی شخصیت جس کے احترام میں یہ بلند ہو جائیں؟ دیکھیے سنیے، جب زہرا کے احترام میں اٹھتے تھے نبی، تو خالی نبی نہیں اٹھتے تھے، بلکہ پردے کے پیچھے دیکھو کون کون اٹھتا تھا۔ بھائی جب نبی اٹھیں گے تو آدم بھی اٹھیں گے، نوح بھی اٹھیں گے، ابراہیم بھی اٹھیں گے، عیسیٰ بھی اٹھیں گے، سارے انبیاء اٹھ جاتے تھے، سارے ملائکہ اٹھ جاتے تھے، سارے صحابہ اٹھ جاتے تھے، کہ جی بیٹھی ہوئی جماعت۔ تو یہ بتائیے کہ کوئی ہے ایسی شخصیت کائنات میں کہ اب جو وہ آئے تو یہ بلند ہو جائے؟ بزم سجی ہوئی ہے، نبی بھی موجود ہیں، شہزادی بھی موجود ہیں، تمام انبیاء موجود ہیں، لیکن اسی بزم میں ٹہلتے ہوئے اگر علی آ جائے، سوچ رہے ہیں، سوچ رہی تھی اگر اسی بزم میں ٹہلتے ہوئے علی آ جائے، کیونکہ ہر زوجہ کے اوپر اپنے شوہر کا احترام ہے، فاطمہ اٹھیں گی کہ علی آ گئے، نبی اٹھیں گے کہ فاطمہ اٹھ گئی، تمام انبیاء بلند ہوں گے کہ نبی اٹھ گئے؟ جی آ گئے، علی بھی بیٹھ گیا تھا۔ اب اس وقت میں ہے کوئی کائنات میں ایسی شخصیت جو آ جائے تو یہ سب لوگ بلند ہو جائیں اس کے احترام میں؟ آپ کو کچھ نہیں کہا ہے کوئی کائنات میں ایسی شخصیت؟ کہا کہ اگر اسی بزم میں ٹہلتے ہوئے جناب ابو طالب آ جائیں، اگر اسی بزم میں ٹہلتے ہوئے جناب ابو طالب آ جائیں، کیونکہ ہر بیٹے کے اوپر باپ کا احترام واجب ہے، علی اٹھیں گے کہ بابا آ گئے، فاطمہ اٹھیں گی کہ علی اٹھ گئے، نبی اٹھیں گے کہ زہرا اٹھ گئی۔ میری اور محمد جملہ سنیے گا جی، شیعت کی لغت میں اسے ابو طالب کہتے ہیں جس کے احترام میں تمام انبیاء بلند ہو جائے۔ سلام میرے اور محمد ابو طالب کہتے ہیں۔ بس ایک پیغام آپ تک کے پہنچانا ہے، انشاءاللہ رفتے مسائل۔ دیکھیے ہمارے درمیان اس پیغام کو جتنا زیادہ کر پہنچایا جا سکے پہنچائیے۔ ہمارے درمیان ایک فرقہ جنم لے چکا ہے جسے ہم لوگ جانتے ہیں VIP شیعہ کے نام سے۔ کون؟ VIP شیعہ۔ یہ کون لوگ ہیں کہ وقت نے تھوڑے سے حالات کیا بدل دیے، اپنی حیثیت بھول گئے۔ وقت نے تھوڑا سا کیا نواز دیا، تھوڑا سا پیسہ کیا آ گیا، اپنی حیثیت بھول گئے، جبکہ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے۔ دے کر دیکھتا ہے کہ کہیں فرعون تو نہیں بن جاتا ہے، لے کر دیکھتا ہے کہ کہیں ہم سے محروم تو نہیں ہو جاتا۔ جی اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ جی یہ VIP شیعہ، پیسہ ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، پیسہ ہونا غلط بات نہیں ہے، کیونکہ غربت کو اسلام کہاں برداشت کرتا ہے؟ کیا کر رہا ہے حضرت کے سامنے؟ غربت کو اسلام بھی پسند نہیں کرتا۔ پیسہ کماؤ،
इंजीनियर बनो, लेक्चरर बनो, प्रोफेसर बनो, लेकिन एक चीज हमेशा अपने ध्यान में रखना कि तुम शिया पहले हो, डॉक्टर बाद में हो, तुम शिया पहले हो, इंजीनियर बाद में हो, तुम शिया पहले हो, प्रोफेसर बाद में हो। ठीक है, वीआईपी शिया की क्या पहचान बदलनी है, अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। जी, वीआईपी शिया, इनकी पहचान क्या है? इनको जैसे ही आप मुहर्रम के जुलूस में देखेंगे, मुहर्रम के जुलूस में आप देखेंगे तो इनके पांव में कैंपस के शूज होंगे, टस के शूज होंगे, और ये जुलूस से आपको तकरीबन अलम से 15 फीट दूर खड़े हुए नजर आएंगे। मातम में क्या आलम होगा इनका? बस सीने पे हाथ ऐसे, किसी ने कहा मातम कर लीजिए, वक्त ने थोड़ा सा क्या नवाज किया, किसी ने कहा मातम कर लीजिए, कहते ये गरीबों की अलामत है। मैं जानता हूं आप खुदा के सामने यही है, ये हकीकत है जो मैं आपके सामने क्या कहते हैं, ये गरीबों की अलामत है। भैया मैंने समाज के अंदर देखा जो हुसैन का मातम नहीं करता ना, वो अपनी तकदीर का मातम करता है। वीआईपी शिया, यहाँ तक की बात होती तो कोई मसला नहीं। अगर कहीं ये मजलिस में आ गए या महफिल में आ गए तो बिल्कुल एकदम खामोश बैठे रहेंगे, दाद बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे शायर कुछ भी पढ़ दे, चाहे खतीब कुछ भी बयान कर दे। और अगर किसी ने कहा दाद दे दीजिए, ये बताइए लिखा हुआ किस किताब में है? क्या आप पढ़ें और हम दाद दें? आप शेर सुनाएं और हम दाद दें? बताइए किस किताब में लिखा हुआ है? क्योंकि आजकल हवाले बहुत मांगे जाते हैं। मैं आप कर रहा हूं अल्लाह के सामने, तो किताब दिखाइए, तो लिखित में दिखाइए, कहां लिखा हुआ है? हमने तो नहरुल बलागा में है, पढ़िए कभी, देखिए कभी, कहां बताइए कहां है? मैंने कलमात खिसार में है। मौलाना ने फरमाया तो कल्लमो व तौरफू, बोलो ताकि पहचाने जा सको, गुफ्तगू करो ताकि पहचाने जा सको, कलाम करो ताकि पहचाने जा सको। मैं भैया जब जाकिर बोलेगा तो अपने इल्म का इजहार करेगा, जब मजमा बोलेगा तो अपने इश्क का इजहार करेगा, जब मजमा बोलेगा तो अपने इश्क का इजहार करेगा। खाली यही तक के बात नहीं रुकती, जहां तक भी चलता तो कोई मसला नहीं, इतने साल से झेलते हुए आ रहे हैं, अभी भी बर्दाश्त कर लेते। लेकिन कयामत तो उस वक्त हो जाती है कि अगर कहीं किसी ने नारा लगा दिया तो उसे ऐसे घूम के देखते हैं कि न जाने इस गरीब ने कितना बड़ा जुर्म कर दिया, न जाने इस गरीब ने कितना बड़ा जुर्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है ये? वीआईपी शिया। शिया ऐसे घूम कर देखते कि न जाने इस गरीब ने कितना बड़ा जुर्म कर दिया। भैया इसी तरीके का एक वीआईपी पाकिस्तान की सरजमीन पर अल्लामा इस्माइल देवबंदी की मजलिस में मौजूद था, मुबल्लिग आज़म अल्लामा इस्माइल देवबंदी की मजलिस में मौजूद था। अल्लामा ने मौला के फज़ाइल का नुक्ता बयान किया, एक गोशा बयान किया, बीच से नौजवान खड़ा हुआ, उसने खड़े होने के बाद नारा लगाना शुरू किया। वो कहता जाता था आदम का मौला अली है, नूह का मौला अली है, इब्राहीम का मौला अली है, सैयदुल मुतहहर अली है, इमामुल मुज़फ्फर अली है, सैयदुल मुजतबा अली है, इमामुल अश्किया अली है, मुफ्ती अश्किया अली है, मुर्शिद उलमा अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। मीर मुदाम शमशेर खुदा अली है, इमामुल महारिब अली है, गफूर मुनासिब अली है, रसूल वासिब अली है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली है, नसरुल्लाह अली है। तो वो नारा लगाते चला जा रहा था अली 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 अली। कहीं से एक वीआईपी उठा और उठने के बाद कहने लगा अल्लामा आप देख नहीं रहे, ये कब से अली 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 किए जा रहे हैं, ये बेहोश हो गए, ये दीवाने हो गए, ये बेहोश हो गए, ये दीवाने हो गए। अल्लाह ने कहा हुआ क्या है? कहा आप देख नहीं रहे, ये कब से अली अली किए जा रहे हैं। अल्लाह ने कहा मुझे ताज्जुब तो इसी बात के ऊपर है कि ये बेहोश होकर भी अली अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली मौला, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बेहोश होकर भी अली अली कर रहा है। मुझसे तेरा नाम है क्या?
शान हुए नूरे जरी कितने हैं, कोई तो मुझको बता दे कि अली कितने हैं। एक नारे है जरी। अरे महाराज सुभान अल्लाह। जी गाय बेहोश होकर भी अली अली, होश में होकर भी अली अली नहीं कर रहा है। जी तो होश में, मैं आपको बताऊं इसका क्या फायदा है अली अली करने का। किताब का नाम है नफ्सुर रहमान फी फज़ाइल सलमान। ये नफ्स जो है ये वाला नफ्स नहीं है, ये सांसों वाला नफ्स है। तारीफ करेंगे क्या नाम है किताब का? नफ्सुर रहमान फी फज़ाइल सलमान। किस लिए लक़ब है इनका नफ्सुर रहमान? मौलाए कायनात कहा करते थे अक्सर कि सलमान जब तुम सांस लेते हो तो रहमान की खुशबू आती है। जी सलमान जब तुम सांस लेते हो, मैंने किताब का हवाला दे दिया, जब तुम सांस लेते हो तो रहमान की खुशबू आती है। और मैंने खुद को मुकम्मल कर दिया। ये करने का क्या फायदा है? सुनिए, जो अभी तक नहीं करता वो करे, हर वक्त अली अली करे। जी जनाब सलमान मस्जिद में बैठे हुए हैं, मौलाए कायनात भी हैं। जनाब सलमान उठकर चले, असहाब का मेहमान था। मौला ने कहा तुम इसे जानते हो, ये जो उठकर गया है? तो ने कहा मौला जानते हैं, सलमान फारसी है। मौला ने कहा नहीं। मैंने कहा तुम इसे जानते हो, ये जो उठकर गया है? कहा मौला रसूल का भी सहाबी है, आपका भी सहाबी है, जैसे दर्जे पर फाइज है। मौला ने कहा नहीं। मैंने कहा तुम इसे जानते हो? कहा मौला फारस का रहने वाला है, सलमान है, आपका बहुत करीबी है, रसूल के बहुत करीब रहा है। मौला ने कहा नहीं, सुनो ये मुर्दों को जिंदा कर लेता है। क्या मौला ने कहा ये मुर्दों को जिंदा करना मेरा उससे खिताब है, तुम और उनको मानता उससे खिताब कभी नहीं किया तो उनको सोचता है। इसलिए कहना क्या था कि ये मुर्दों को जिंदा कर लेता है। अब भैया हर जमाना सहाबा इकराम तीन उठे, दो तीन मान लीजिए, हर जगह पर तीन गलत नहीं है। याद कर रहा हूं आपके सामने कलमे की शहादत भी है, उनकी तीन है शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियुल्लाह वलियुल्लाह। वो हवा दे रहा है। जी सुनिए, वो उठ कर गए तीनों, पीछे पीछे पहुंचे। जनाब सलमान चले हुए जा रहे। कहला सलमान तुमने बताया नहीं? कहला क्या? कहला हमने सुना है तुम मुर्दों को जिंदा कर लेते हो। जनाब सलमान ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी मौला अली कह रहे थे कि तुम मुर्दों को जिंदा कर लेते हो। देखिए सलमान किसे कहते क्या था? अभी अली कह रहे थे कि तुम मुर्दों को जिंदा कर लेते हो। जनाब सलमान का मेरा मौला कहता है तो कर लेता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहता है तो कर लेता हूं, मेरा मौला कहता है तो कर लेता हूं। सुना था वो भी कहां मानने वाले थे, सहाबी थे। हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद कब्रिस्तान में लेकर आए। कब्रिस्तान में लाने के बाद क्या करो जिंदा, एक कब्र के सामने खड़ा कर दिया कि करो करो जिंदा। जनाब सलमान ने कहा, वाकया उसमें पूरा मौजूद है। जनाब सलमान ने कोई दुआ नहीं की, नमाज नहीं पढ़ी। जनाब सलमान ने उस कब्र पे खड़े होकर कहा, ए साहिबे कब्र, ये कहते हैं मेरा मौला ये कहता है कि सलमान मुर्दे जिंदा कर लेता है। अगर ये बात सच है तो बाहर निकल। भाई मजमे ने देखा, उन लोगों ने देखा कि कब्र फटी, कब्र शिरात हुई, मुर्दा बाहर निकला। मुर्दा कहलाता है ना बनी ना बनी ना बनी। मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट कहाँ है, मेरा ऊँट का जनाब सलमान ने कभी सोचा। बात साबित हो गई कितना था। अभी आने के बाद फौरन मौला के पास आने के बाद कहने लगे मौला ऐसे ऐसे आपने बयान किया, ये लोग पीछे चले गए, साहब बैठे हुए थे तमाम। मौला ऐसे लोग 3-4 लोग
जो इंसान जिस आलम में जाएगा उसी आलम में उठाया जाएगा। कसम खुदा की वो कितना हसीन लम्हा होगा कि जब अली का चाहने वाला उठाया जाए और उस वक्त एक ही सदा हो, या अली, या अली, या अली।